Hello, dear students. I'm Kirti Sharma from the Modern Pathshala. Welcome to a new video, and in this video, I'm going to be dealing with the concepts related to word problems on linear equations. So, I'll teach you how to solve the basic different types of problems related to linear equations. तो यहाँ पर मैंने इस पूरे वीडियो को चार कैटेगरीज और यू कैन से चार टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, जहां पर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल क्वेश्चन। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं सिखाने वाली हूँ कि आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, rather my focus will be to make you understand how to form the equations actually, okay, by reading the word problems. I'll teach you each and every small step, each and every method. I'll give you some tricks. So I request you to make sure that you follow each and every second of the video properly. Okay, so let's start. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर है, फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज एज रिलेटेड। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एज यूजुअल फॉर एवरी मैथमेटिकल क्वेश्चन एक्चुअली वी हैव टू रीड द क्वेश्चन थरली। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम हियर। So father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. Find the present age of father and son. तो यहां से हमें इतना इंफॉर्मेशन मिला कि वी हैव टू पर्सन, यू कैन से फादर एंड सन। हमें उन दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, जबकि हमें उनके लेटर एजेस का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। सो सबसे पहले आर ड्यूटी और यू कैन से आर प्राइम फोकस शुड बी टू राइट डाउन व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे यहां पर लेट फादर्स एज be x. What age? Let father's present age to be more precise. And son's age. What age again? Present age. B y. ये years में है. Okay. Now अब हमें देखो यहां पर क्या बोला है, फादर्स एज इज 6 times his son's age। तो हमें ये आर्ट आना चाहिए कि हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करें। सो फादर्स एज इज, फादर का एज को हमने माना था x, इज को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वल टू से 6 times his son's age। 6 times is multiply, son's age again is y। So x equal to 6y is my first equation. Now let's try to form second equation. तो हमने already ये statement को use कर लिया है। Let's see what the next statement says. 4 years hence. Hence means later. Okay? तो जैसे ही हमें ये statement दिखे 4 years hence, तो हम क्या करेंगे, 4 साल बाद के लिए जो भी उनके एजेस होगा, राइट, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। So let's write 4 years later. So 4 years later, father's age is going to be how much? अभी अगर एज आपका x है, तो 4 साल बाद आपका एज क्या होगा? Obviously you will grow elder, right? So plus 4. So this is going to be x plus 4 and son's age is going to be, अभी अगर son का age y है, so it will also be y plus 4. Now let's read the rest of the question. The age of father will be, again, age of father, that is x plus 4, will be 4 times his son's age. 4 times his son's age. तो यहाँ पे हमने क्या किया, age of the father equals 4 times son का age. So यहाँ पर अगर हम इसे simplify कर दे, we will get x plus 4 equals to 4y plus 4 times 4 is 16. Simplify कर दो. So we will be getting x minus 4y equals to 12, and this will serve as our equation number 2. So here we have this first equation and second equation, and if we have two equations, we can easily find out the value of the variables x and y from here. You can use any method, substitution, elimination, anything that you like, and लास्ट में हम बस मेंशन कर देंगे x और y का जो भी वैल्यू आएगा विद द प्रॉपर यूनिट्स।
तो यहां पर मेरा प्राइम फोकस है कि आप ये समझो कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है, राइटिंग कैसे लिखना है। सीबीएसई में, आईसीएसई में ये राइटिंग वाले पोर्शन की आपको मार्क्स मिलती है। अगर आप करेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर लेते हो तो यू विल बी गेटिंग 70% मार्क्स विच द क्वेश्चन कैरीज। ओके, सो मेक श्योर आप ईच एंड एवरी स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखो एंड इक्वेशंस को प्रॉपरली फॉर्म करो। ओके, so I hope you will now be able to solve age related questions. Let's see the next type of questions, that is upstream and downstream. I don't know why upstream and downstream related questions में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो I'll make the concept very clear for you and I'll also tell you how to solve this without making any mistake. तो सबसे पहले आप ये समझो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को आप कैसे याद रखोगे। ओके, तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगेन आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिक। ओके, तो आप ऐसे याद रखना, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है ऊपर, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है नीचे। तो यहां पर एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट? एक मान लेते हैं हमारे पास कोई बोट है एंड दूसरा चीज क्या है, द वाटर इटसेल्फ। So the water is also moving, the boat is also moving, obviously the boat will be moving at a higher speed. Okay, ये चीज क्लियर रखना। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास दो स्पीड आया ना, तो क्वेश्चन में भी देखो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट ही बोलेगा आपको। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेट द स्पीड ऑफ stream be x and speed of boat be y. ओके, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं और डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर अपस्ट्रीम स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज ऑलवेज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। ये आप रिलेटिव मोशन में भी पढ़े होंगे, जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती है तो हम उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं फॉर गेटिंग द टोटल स्पीड। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी आर अप्लाइंग ओवर हियर। तो अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, हम दोनों के स्पीड को सबट्रैक्ट करेंगे। अगेन बोट का स्पीड यहां पर बड़ा है, सो ऑलवेज वी विल डू व्हाट, y माइनस x। ओके, नाउ फॉर डाउनस्ट्रीम व्हाट वी विल डू, डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा y प्लस एक्स। वाई, डाउनस्ट्रीम में प्लस करना है, अपस्ट्रीम में माइनस करना है। किसे प्लस माइनस करना है, स्ट्रीम के स्पीड को एंड बोट के स्पीड को। अगर क्वेश्चन में आपको बोट नहीं देके स्टीमर दिया हो, कोई स्विमर दिया हो, डाइवर दिया हो, जो भी है उसके स्पीड को, राइट, जहां पर बोट या डाइवर स्विमर इनका स्पीड ज्यादा होगा। नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन नाउ। A boat goes 30 kilometer upstream, 44 kilometer downstream in 10 hours. तो यहां हमें समझ में आया कि 10 घंटे में 10 आवर्स टोटल टाइम लगा, जिसमें बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया। 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये दो केसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 के बारे में ही बात करें, तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है 30 एंड 44। सो दिस इज 30 एंड यहां पर डिस्टेंस है 44। नाउ आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यही फॉर्मूला को यूज करके अगर मैं डिस्टेंस बाय स्पीड लिखूं, सो दिस विल बी 30 बाय y माइनस एक्स एंड यहां से टाइम क्या हो जाएगा 44 बाय y प्लस एक्स। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट केस में अपस्ट्रीम में ये टाइम आया, डाउनस्ट्रीम में ये टाइम आया एंड द टोटल टाइम इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, 30 बाय y माइनस एक्स प्लस 44 बाय y प्लस x equals to 10. This is our first equation. So similarly you can write the second equation as well. यहां देखो अपस्ट्रीम के जगह पर 40 हो जाएगा डिस्टेंस एंड डाउनस्ट्रीम के जगह पर 55 हो जाएगा एंड टाइम के जगह पर 13 हो जाएगा। तो इसे भी अगर हम लिखें, सो इट विल बी 40 एंड 55। सो 40 बाई y माइनस एक्स प्लस 55 बाई y प्लस x equals to 30. This will be our second equation.
So now we have already formed the equations. We can easily find out the value of x and y by solving these two linear equations simultaneously. So this is how you will be dealing with the questions related to upstream and downstream. स्पीड को हम कंसिडर करेंगे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए स्पेसिफिकली स्पीड कैलकुलेट करेंगे, एंड ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करके पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. नेक्स्ट वी हैव नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस. तो यहां पर हमें क्या करना है, देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. 7 times a 2-digit number. Okay, now we have to form a 2-digit number. एंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज रिमेंबर वी विल बी सपोजिंग द डिजिट्स. सो लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, वंस डिजिट बी वाई. तो अगर आपके पास टेंस डिजिट और वंस डिजिट है तो आप उससे नंबर कैसे फॉर्म करते हो? अगर आपके पास 5 और 4 है तो हम क्या नंबर फॉर्म कर सकते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 4 और 4 इंटू 10 प्लस 5. तो बेसिकली जो टेंस प्लेस में होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वही चीज हम यहां पर करेंगे. तो दिस इज गोइंग टू बी 10x प्लस वाई. इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपको रिवर्स नंबर भी पूछता है, तो हम पहले से ही निकाल लेते हैं. रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा? जो वंस प्लेस में था वो टेंस प्लेस बन जाएगा. सो दैट विल बी 10y प्लस x. नाउ वी हैव गॉट द डिजिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, original number and reverse number. Let's go through the question. 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of the digits. मतलब 7 times a 2-digit number means the original number is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit. That is this. अब अगर इसे हम solve कर लें, so we will be having 70x plus 7y, 40y plus 4x. So this will be 70x minus 4x plus 7y minus 40y equals to 0. So we will be getting 66x minus this will be 33y equals to 0. यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए LCM ले ले 33 को, so 33 twos are and this will be 0. So 2x minus y equals to 0 is going to be our first equation. तो यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया 2x minus y equals to 0. Now let's try to form the second equation. So for the second equation, we can see the information. The difference of the digit is 3. So let's see. We can write this as y minus x equal to 3. So this is going to be our second equation. Now for this question, I am going to solve the equation because I have something important to let you know. तो यहाँ पर अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें 2x मिल जा रहा है y का वैल्यू. इस y के वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2x minus x is going to be 3. So x का वैल्यू मिल गया हमें 3 and y is nothing but twice x. So it is going to be 6. तो हमें याद रखना क्वेश्चन में हमेशा नंबर पूछा जाएगा. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो x और y की वैल्यू को निकालकर बस उसे ही ऐसे रहने देते हैं. तो नंबर अगर पूछा है तो नंबर क्या था हमारे पास? 10x plus y. So this is going to be basically 36. अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो, 36 हो गया और 63 हो गया इसका रिवर्स. आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो 7 टाइम्स द नंबर. सो अगर हम इसे 7 करें, 7 6 are 42, 7 3 are 21, 252. एंड इसे अगर हम कर दे टाइम्स 4, 4 3 are 12, 6 4 are 24, 252. You can see we are getting the same result. So this is how we will be dealing with the questions related to numbers. Writing this 3 lines are very important so that you don't get lost while forming the equations. So now let's deal with the fourth type of question, that is fraction related. So let's see. A fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator
and it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. So as we know that fraction में हमारे पास numerator and denominator होता है, तो यहाँ पर मैं numerator को x ले लेती हूँ, denominator को y. तो क्या बोल रहा है, fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator. तो x minus 2, denominator में कोई change नहीं है, this is going to be 1 by 3, cross multiply, 3x minus 6 equal to y, और 3x minus y equals to 6. तो यहाँ हमें easily मिल गया हमारा first equation. Similarly, for the second equation, what we can do, it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. So numerator में no change. 1 subtract कर दिया denominator से, we get 1 by 2. Again cross multiply, 2x equal to y minus 1. 2x minus y equals to minus 1. This is going to be my second equation. So we have easily found out the equation. Once we solve it, we will be getting the value of x and y. And जब x and y का value मिल जाएगा, हम उसे बस put कर देंगे, and we will get the fraction as x by y. So solving fraction related question is very easy. यहाँ पर just हमें question को part by part पढ़ के उसे execute करना होता है. Number related question is also easy. Upstream downstream के लिए भी आपको इट्स इजी, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ओके, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बेसिक बहुत सारे वैरायटीज में नहीं आते. ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए, ये सबसे ज्यादा रिपीटेटिव इन नेचर है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं. तो एटलीस्ट आई सजेस्ट कि आप ये 4 टाइप के क्वेश्चंस में कमांड कर लो, एंड you always have many questions for practicing. आप RS अग्रवाल के previous year questions practice कर लो, NCERT में जितने भी questions है उसे अच्छे से practice कर लो, examples practice कर लो, and I'm sure you will be good to go for the word problem related questions. So this is all for this video. Thank you so much. And if you have any question, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, कुछ suggest करना चाहते हो, feedback देना चाहते हो, so definitely drop a comment and do share the video with your friends and keep preparing well. Thank you so much for watching.